Listen to me. I'm just revising the whole formulas thing again. First, we are discussing kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. Okay. सबसे पहला formula. After discussing, I'm discussing part one only है. Part two आपको मैंने watch करने दिया नहीं है. So from next time we'll be starting with part two. Formula number one. सबसे पहला formula is free path. What is free path? The distance between two successive collisions. The distance between two successive collisions. Second, mean free path. All free paths are not the same. Say the molecule collides this way, lambda 1, then it collides again, comes back, lambda 2, and lambda 3. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 are free paths, but you can see that the free paths are not the same. It can again go here and then lambda 4. So average of all the free paths will be mean free path. So lambda average will become lambda 1 plus lambda 2 plus dot 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 lambda n divided by n. Okay, this is also called as mean free path. That is total distance traveled upon total collisions. Total distance traveled upon number of collisions or total number of collisions. ठीक है. There is another formula for free path, mean free path, which is given in our book is lambda is 1 upon root 2 pi d square chota n. So lambda is called as mean free path. What is d? It is diameter of the molecule. And small n को बोलते हैं number density. Number density. What is number of density? That is number of molecules per unit volume. Number of molecules in a given volume, or I can say in a unit volume. So this is all about free path. ये भी free path है, mean free path यही है lambda. हमने discuss किया है. Okay. This was there. Are you all there with me? Hello. Yes, sir. ठीक है. So ये important है. ये last year NEET में पूछा गया था. आपको तो NEET देना नहीं है, but same sum, only the formula was asked in the NEET exam. Okay, so this formula has to be learned by heart. If you're giving CET or something, this formula can directly come from your GTD. इसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा. I'll come to fourth, that is pressure exerted by gas. Okay, in a container, that is P. You know the whole derivation we had done. The pressure exerted by gas is 1 upon 3 rho C RMS the whole square. What does rho stand for, beta? Density of gas. And this is called as RMS speed. रूट मीन स्क्वायर स्पीड. अभी थोड़ी देर में हम लोग डिफाइन भी करेंगे इसको. हम लोग इस डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, which can बड़ो m can also be written as mass of each molecule into number of molecules by volume. Hello, do you remember? Hello, this is mass of gas, this is volume of gas, or I can say it is volume of container. What is this?
This is mass of each molecule. And what is N? Okay. Number of molecules. ठीक है? Are you all understanding? Hello? बोलो भाई. Yes, sir. So this formula is very important. Similarly, this is also very, very important. What does P stand for? Pressure exerted by the gas. Yeah. ध्यान रखना है इसका. इसके बाद में हमने और डिफाइन किया फिफ्थ, मीन वेलोसिटी. एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. मीन वेलोसिटी क्या होती है? तो आई कैन से मीन वेलोसिटी विल बिकम v bar will become v1 plus v2 plus vn bar divided by n. हेलो, यस और नो? हेलो, इसको बोलते हैं मीन वेलोसिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन को भी पिक्चर में लेना पड़ेगा. इसके बाद में हमने और एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी. दैट इज v बार का स्क्वायर. दैट विल बी v1 स्क्वायर, बिकॉज आपको मालूम है जब बार का स्क्वायर होता है, वेक्टर का स्क्वायर होता है, तो वो स्केलर बन जाता है. हेलो, आई ऑल देयर विद मी? से यस और नो? क्लियर है ना? तो Yes. ये स्केलर बन चुका है. अब इसका फिर से रूट ले लेते हैं. तो उसको कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे बेटा? इसका रूट ले लेंगे तो कौन सा वेलोसिटी बन जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. हेलो, आर यू देयर विद मी? Because we cannot operate over here because this is which quantity? हेलो, तो पूरे चैप्टर में हमको स्केलर की बात करनी है, वरना डायरेक्शन लेंगे मॉलिक्यूल के डायरेक्शन तो इधर उधर होते हैं, तो आप पागल हो जाएंगे. तो therefore we have introduced the concept of root mean square velocity. मतलब उसको स्क्वायर करो तो स्केलर बन गया, फिर से रूट ले लो. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई टेलिंग यू? हेलो, so CRMS is going to become root of v1 square या c1 square plus c2 square, मतलब इसका रूट ले लेना, प्लस vn square डिवाइडेड बाय n. इसको बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी. और ये हमारे काम का है बहुत, ये हमारे बहुत काम की चीज है. हेलो, आर यू देयर? बाबा से यस और नो? Yes, sir. ये हमारे बहुत काम की चीज है आरएमएस वेलोसिटी. मतलब ये वाला फार्मूला, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन बहुत ज्यादा यूज होगा ये चैप्टर में, और ये तो है ही उसका पार्ट है ये. गॉट इट एवरीवन? इसके बाद में देयर आर स्मॉल फॉर्मूलाज व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग. यू आर टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग? हेलो, ये लो भाई. I'll go to the next formula, which was one, eighth one. बराबर है? Hello, yes. That is what is Boyle's law. Can anyone tell me what is Boyle's law? At constant temperature, pressure is inverse to volume, or I can say PV is nothing but a what, sir? Constant. Constant. ये चीज. Ninth formula, CRMS, that is the RMS speed का दूसरा formula is under root 3RT by mu. Mu is the molar mass. T is the absolute what, sir? Temperature. This is RMS speed. बराबर है? अच्छा, म्यू फॉर हीलियम कितना होता है? 4 ग्राम. म्यू फॉर हाइड्रोजन कितना होता है? 2 ग्राम. म्यू फॉर ऑक्सीजन कितना होता है? 32 ग्राम. म्यू फॉर नाइट्रोजन कितना होता है? 28 ग्राम. ये 4 गैसेस में से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन में. हेलो, आर यू देयर विद मी? हेलो,
ये पूछा जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना इन योर पोर्शन। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड आता है बट जनरली इट इज नॉट यूज्ड इन द बोर्ड्स एग्जाम। आर यू देयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फाइन, नाउ वी कम टू 10th one. Who is muted? Okay, question number point number 10. Kinetic energy of a gas. Ke of a gas is 3 by 2 PV, that is 3 by 2 nRT. This is K of a gas, huh? Kinetic energy of a gas. Kinetic energy of a gas per unit mole is 3 by 2 RT. N को निकाल देने का, per mole है ना, एक मोल का। Kinetic energy of a gas per unit molecule, अभी ध्यान देना इधर, is 3 by 2 R by A into T, where A is called as Avogadro's number। यहाँ पर मैं A से डिनोट करूंगा, हमके केमिस्ट्री में N नॉट से डिनोटेड है, तो इसको बोलेंगे 3 by 2 KT। What is K called as? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हेलो, सब पढ़ा है ना आप लोगों ने? भाई बोलो। Yes, sir. इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एंड आर तो मालूम है ना, 8.3 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास is 3 by 2 RT by mu. Mu is molar mass. And lastly, it is kinetic energy per volume. It's only 3 by 2 P, because 3 by 2 PV से अगर वॉल्यूम निकाल देंगे तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए। These all formulas are very very important। कभी कभी पूछ लेता है ये पूरा। हेलो, are you all present? Yes or no? भाई बोलो। Yes, sir. ओके फाइन। सो आप इतना नोट कर लो, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स एकदम सिंपल है। इट इज ओनली फॉर्मूला बेस्ड, ओनली फॉर्मूला बेस्ड, नथिंग एल्स। सो आई शेयर द पीपीटी स्लाइड ऑफ दिस वन and I'll be doing star mark numericals. Can you see the slides? Yes sir. Hello भाई, हाँ ना बोलो, करेक्ट है क्या? Yes, sir. चलो हाँ, आप लोग बताना फॉर्मूला। आई एम डूइंग ओनली द स्टार मार्क, दैट इज द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स व्हिच आर देयर। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, थोड़ा लिखना है एंड यू विल गेट इट। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन रो दिया हुआ है 1.44 kg per meter cube, प्रेशर इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आरएमएस वेलोसिटी मांगती है। बोलो, ढूंढो फॉर्मूला कौन सा है। कम ऑन प्लीज टेल मी, जल्दी जल्दी। आपको अभी सिखाया मैंने, कौन से फॉर्मूला देखना है। कम ऑन प्लीज टेल मी, व्हाट इज प्रेशर रो और सीआरएमएस का रिलेशन। कम ऑन मैन। 1/3 rho CRMS. Yeah, P is 1/3 rho CRMS the whole square. By the way, after vacations I'll be starting take-ups, that मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो। तो CRMS कितना हो जाएगा? 3P by rho under root of that, बराबर है क्या? So 3 into 10⁵, rho is 1.44। इसका ये लिख सकते हैं 30/1.44, बराबर है 10⁴ का रूट निकल गया, 10⁵ बन गया। समझ में आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, अरे sir. खाना बोलो बेटा। इसका लॉग ले लेना, ये वाली चीज का, हाफ लॉग ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंटी लॉग ऑफ दैट, you will get 4.56 into 10⁵ meter per second. Do you agree with me? हेलो हेलो, खाना बोलो जल्दी। करेक्ट है Yes, ना? sir. कुछ भी नहीं है इसमें, तो एकदम इजी है ये। आप लोग फॉर्मूला बताते जाओ, मैं सब्स्टिट्यूट करता रहूंगा, ठीक है? ये फॉर्मूला माइंड यू बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। आई एम गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन बताएगा? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस एट दिस मच एंड दिस मच।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आरएमएस स्पीड? आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या था? सीआरएमएस का क्या फॉर्मूला है? चलो जल्दी, जनरल फॉर्मूला क्या था? अरे भैया टेल मी। हेलो। √P1 square plus V2 square plus नो नो, वो काम नहीं V2 लगेगा, square. बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर है बेटा, तो टेम्परेचर के टर्म वाला चाहिए मुझे। दूसरा कोई फॉर्मूला है टेम्परेचर के टर्म में? मैंने अभी लिखा है, कम ऑन। CRMS in terms of T. √3 RT by mu. परफेक्ट। कैन आई से इधर से टेम्परेचर ही बदल है, बिकॉज गैस सेम है, ऑफ और गैस मतलब गैस सेम है, तो कैन आई से CRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T? बोलो हाँ ना। हेलो। CRMS 1 अपॉन CRMS 2 विल बिकम रूट ऑफ T1 by T2। अच्छा T1 कितना है? 30 है, अपॉन 120 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 का रूट हाफ। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, यस और नो? बोलो भाई। हेलो, गॉट इट? I Yes, should sir. start asking you all now, man. I चलो इधर दे देखो 52। A gas in a cylinder's pressure P, मतलब P1 is P. If the mass is made 1/3, मतलब पहले मास M था, पहले M1 was M, अब M2 कितना हो गया? 1/3 of M, बराबर है क्या? And the speed is doubled, मतलब V2 is becoming twice V1. Then the pressure, मतलब P2 मांगता है। विच फॉर्मूला? प्रेशर का एक ही फॉर्मूला तो आता है मुझे, कौन सा फॉर्मूला है? कम ऑन, फेमस फॉर्मूला कौन सा है सबसे? हेलो, सबसे फेमस फॉर्मूला कौन सा है प्रेशर का? 1/3 रो CRMS the whole square. Are you getting it? हेलो, Yes, sir. E is 1/3 रो को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इनटू CRMS the whole square. ओके अच्छा, वॉल्यूम सेम है, एक ही सिलेंडर है ना, देखो ना एक ही सिलेंडर है, तो कैन आई से प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू CRMS स्क्वायर. डू यू अग्री विथ मी? अरे डू यू अग्री मैन? Yes, sir. तो कैन आई से P1 अपॉन P2 will be M1 upon M2 into CRMS 1 upon CRMS 2 the whole square. कुछ भी दम नहीं है, ये P है, P2 मालूम नहीं है, M1 is M, M2 is M by 3, CRMS 1 को C पकड़ते हैं, CRMS 2 कितना हो गया? ट्वाइस हो गया ना, ये MM, ये 3 ऊपर गया, ये गया 1/4, बराबर क्या? P2 कितना हो जाएगा? कैन आई से इट इज 4/3 P? हेलो हेलो, यस और नो? बोलो। Yes, sir. ये फॉर्मूलाज हमको यूज करना है, ये फॉर्मूलाज हमको यूज करना है, आपको वीडियो देखना है, एक बार लिखना है, आ जाएगा। यही है भाई बोर्ड्स, नथिंग एल्स। एंड आउट ऑफ द बुक आल्सो नो क्वेश्चन विल कम, दैट इज आल्सो गारंटीड। न्यूमेरिकल नंबर साथ में, नंबर सेम, और क्या चाहिए यार? शो दैट RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन गैस इज √2 टाइम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओहो, सल्फर डाइऑक्साइड पूछ लिया। चलो मुझे बताओ कि म्यू ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32 ग्राम। मोलार मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना होता है? हेलो, चलो केमिस्ट्री का टेस्ट है, बोलो यार जल्दी। अरे इतना तो बता सकते हो यार। 64. 64। हाउ डिड यू कम टू नो बेटा? हेलो, खाली सल्फर का कितना होता है? हेलो हेलो, प्लीज टेल मी। सल्फर इज 32 ना, एंड ऑक्सीजन इज 32, ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा CRMS का फॉर्मूला हमको पता है, √3RT by mu. Can I say CRMS is inverse to root mu? That is CRMS of oxygen upon CRMS of sulfur dioxide will be under root of mu SO2 upon mu O2. ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा mu SO2 is 64/32, that is √2, बराबर क्या? हेलो,
Can I say CRMS of O2 is root 2 times of CRMS of SO2? Prove हो गया ना? Hello, are you there? Yes or no? Hello, please tell me yes or no. Clear है? Okay, fine. Now, Yes, sir. next question is the same. I'm giving for homework. Question number 56 पर आता है. 54 and 55 all do. I'll come to 56. ठीक है? 56 पर आता है. 56. The 56 is not there only. ठीक है. 55 भी easy है यार. 55 कर लेते हैं. चलो. Compare the RMS speed of hydrogen at 127 डिग्री सेल्सियस. मतलब कितना केल्विन होता है? हेलो, कितना केल्विन होगा? हेलो. और दूसरा वाला कौन सा है? 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273, तो 300 केल्विन होगा. बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. कंपेयर द CRMS. अच्छा, CRMS का फॉर्मूला क्या है फेवरेट? अंडर रूट 3RT by mu. Can I say CRMS is proportional to root T and inverse to root mu? Can I say CRMS 1/1 मतलब हाइड्रोजन और CRMS 2 will be under root T1 by T2 into mu2 by mu1. ये हो जाएगा रूट ऑफ T1 by T2. T2 is T1 is 400/300 हाइड्रोजन का, एंड ये उल्टा है ना, दैट विल बी ऑक्सीजन, दैट इज 32/2 हो जाएगा 16. 16 4 का 64, 64 का रूट 8 बाई रूट 3. हेलो, समझ में आ रहा है क्या? आर यू देयर? यस और नो? Yes, sir. ये फॉर्मूला अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ओके, ठीक है. अगर आप बार बार देखो ना, ये सम रिपीट हो रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला एग्जामिनेशन में आने वाला है. यू अंडरस्टैंडिंग द ट्रिक व्हाट एम आई टेलिंग यू? मतलब अगर आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखो, एक फॉर्मूला बार 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 रिपीट हो रहा है, तो आपको समझ जाना है वो एग्जामिनेशन में भी आने वाला है. जैसे ये बार 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 रिपीट हो रहा है ना जीटीबी के सम्स में, तो दिस श्योर शॉट आई कैन प्रिडिक्ट कि दिस सम विल श्योर शॉट कम ओनली. हेलो, कुछ समझा आपको? तो पढ़ाई करते समय ऐसे ही पढ़ना है हमको. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर केजी पर मॉलिक्यूल. कम ऑन, टेल मी द फॉर्मूलाज ऑफ पर मोल या पर किलोमोल. सेम रहेगा? क्या रहेगा? 3/2 RT. What is kinetic energy per molecule? 3/2 RT by A, where A is Avogadro's number. Kinetic energy per unit mass, मास बोला है ना लास्ट में, पर केजी मास होता है 3/2 RT by molecular molar mass. हेलो, चलो सब्स्टिट्यूट करो. 3/2 R is 8.3 दिया हुआ है. टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 127 डिग्री सेल्सियस मतलब 400 केल्विन. आर यू देयर विद मी? हेलो, ये हो जाएगा 3/2. अच्छा 3/2 देखो ना, 3/2 RT यहाँ से ढूंढ लिया ना मैंने. कैन आई से ये जो भी आंसर आता है ना, कैन आई से ये आंसर को मैं किससे डिवाइड मार दूंगा? कम ऑन मैन, टेल मी. अरे भाई, ये 3/2 RT तो सेम है ना, देखो ना ऊपर वाला, इधर भी सेम है. कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हेलो. Yes, sir. And this answer will come in joule per molecule. And अगर क्या करना, आंसर डिवाइडेड बाय मोलर मास. कौन है? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन है 32 into 10⁻³ बिकॉज इट इज ग्राम में. ये हो जाएगा जूल पर केजी. आर यू देयर विद मी? आर यू देयर विद मी? बोलो. हेलो, हे मैन, प्लीज टेल मी. क्लियर है? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir.
Next we will come to question number 59. Two vessels A and B are filled with the same gas, where volume, temperature and pressure in both the vessel of A is twice the volume, temperature and pressure in the vessel B. Okay, so A में क्या हो रहा है? Pressure is 2P, volume is 2V, and B गैस में क्या है? Pressure P है, volume V है. समझ में आ रहा है क्या? Calculate the ratio of number of molecules in the vessel. कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला है? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करना है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी मांगता है. कैन यू ट्राई व्हिच फॉर्मूला टू यूज? प्लीज टेल मी. हेलो, यू नो आइडियल गैस इक्वेशन? पता है आइडियल गैस इक्वेशन? कम ऑन, एनीवन? हेलो, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to nRT. PV is nRT. What is छोटा n stand for? Number of Moles. moles. सही है. अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूं मैं? नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकता हूँ? याद है किसी को? Mass upon molar mass. ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए ना इधर बेटा. हेलो, कैन आई से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर? ये सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर. बराबर है क्या? हेलो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पीवी इज छोटा एन को लिख सकता हूँ एन बाई ए आर टी, या तो आर बाई ए को साथ में ले सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पीवी इज एन के टी. बोलो हाँ ना? अरे आर बाई ए के बनता है ना. हेलो, आई ऑल देयर विद मी? आई ऑल देयर? मतलब ये इज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज इन नंबर ऑफ मोल्स. हाँ ना? यस और नो? हेलो, अरे यार हाँ ना बोलो. सही है क्या? अब क्या नहीं से PV इज एन के टी अगर इस्तेमाल करना है, बड़ा एन के टी, तो N विल बी प्रोपोर्शनल टू PV. मतलब Na अपॉन NB will be PA upon PB into VA upon VB. PA is 2P and this is P into VA is 2V upon V. ये तो उड़ जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 4. यस और नो? हेलो, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो. यस और नो? हेलो, अरे मैन, यू गॉट कंफ्यूज्ड और व्हाट? हेलो, So can you explain also? सी ओके, आई रब दिस. देखो इधर आसान है एकदम. व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? जल्दी बोलो. PV is equal to nRT. व्हाट इज N स्टैंड फॉर? हेलो, Number of particles. नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये क्या होता है? हेलो, क्या बोलते हैं इसको? अरे कोई बताएगा क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ Moles. मोल्स बोलते हैं. कैन आई से जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उसके हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे. ये फॉर्मूला सुना है आप लोगों ने केमिस्ट्री में? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स. और इसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं. बराबर है क्या? हेलो, आना बोलो. हेलो, तो कहना इसे जितना n रहेगा ना उतना ही तो बड़ा n होगा. रेशियो सेम रहने वाला है. तो कहना इसे इफ n इज प्रोपोर्शनल टू PV then बड़ा n will also be proportional to PV. Did you understand this thing? Hello, can I say Na upon Nb will become Pa upon Pb into Va upon Vb. Pa is 2P which is given and this is P into Va is 2V, this is V, so this will be 4:1. अरे भाई समझा आप लोग को? We are using this equation only. Got it?
प्लीज से यस और नो सो आई कैन गो अहेड. क्या हो रहा है यार? Yes, sir. हाँ 4:1 आएगा ना. minus m by mu. Yes. Na by nb. टेम्परेचर का फर्क दिया है क्या? ट्वाइस द वॉल्यूम टेम्परेचर. अच्छा टेम्परेचर भी डबल है क्या? एक मिनट. ट्वाइस द वॉल्यूम कैसे लिए? ट्वाइस द वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. अच्छा टेम्परेचर भी डबल है तो टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा ना. हेलो यहाँ पर गलती हो गई. टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा ना हमको. दे हैव टोल्ड यू टेम्परेचर भी डबल है. फिर से कर लेते हैं. चलो 2 मिनट लगेगा. इधर देखो. यू नो ए में क्या हो रहा है? प्रेशर इज 2p, वॉल्यूम इज 2v एंड टेम्परेचर इज 2t. बराबर क्या? हेलो. एंड बी में क्या है? pvt है. अच्छा कैन आई से pv इज nrt? और भी n. तो कैन आई से n इज प्रोपोर्शनल टू pv बाय rt. बट r तो कांस्टेंट है तो इसको निकाल देंगे. So Na upon Nb will become Pa upon Pb into Va upon Vb into Tb by Ta. So Na upon Nb will become 2P by P, 2V by V. और ये उल्टा लिखना है. That is V by T by 2T. ये सब कैंसिल. ये कैंसिल. तो ये 2 भी कैंसिल. तो ये आ गया 2:1. और जो ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स का है रेशियो वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो रहेगा. दैट इज 2:1. यस और नो? हेलो. यहाँ पे टेम्परेचर मैं भूल गया था. ठीक है ना? हेलो. Yes, sir. Fine. Now I'm going to go to the next concept. ये सब लोगों ने कॉपी कर लिया है. इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं हम लोग. इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन. You know that kinetic energy per molecule was 3/2 kT. और ये जो हमने कैलकुलेट किया was for a monoatomic gas. मोनोएटमिक गैस के पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा? हेलो. मोनोएटमिक गैस के पास कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं? कौन? 1 ही होता है ना. तो एक मॉलिक्यूल या एक एटम कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है? कैन आई से इट कैन गो अलोंग द एक्स एक्सिस. हेलो. इट कैन गो अलोंग द वाई एक्सिस एंड इट कैन गो अलोंग विच एक्सिस बेटा? जेड एक्सिस. बराबर है. So it can have kinetic energy that is half mvx square along x axis, half mvy square along y axis and half mvz square along z axis. इसके पास पूरी एनर्जी है 3/2 kT. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बोलता है? इक्विपार्टीशन मतलब 3/2 kT के 3 हिस्से करो क्योंकि 3 एनर्जीज है ना इसके पास. कैन आई से हाफ kT इसको दे दो, हाफ kT इसको दे दो और हाफ kT इसको दे दो. सबको समझा गया? हेलो. अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो समझ गया रहेगा. हेलो. Yes, sir. एक डायरेक्शन में जाने को बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. कितना इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स है इसके पास? कोई बता सकता है इस मोनोएटमिक गैस के पास कितने इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स है? हेलो. कितने इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स है इसके पास? 3 है. तो 3. इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 3. फ्रीडम. कैन आई से इट इज 3 व्हाट? ट्रांसलेशनल क्या रोटेशनल? Translation. बहुत अच्छे. ट्रांसलेशनल एनर्जी है इसके पास. ठीक है. और कितना रोटेशनल है? 0. 0 रोटेशनल है. और कितना वाइब्रेशनल है? 0. रोटेशनल. सॉरी स्पेलिंग. तो यू नीड टू सी द वीडियो. इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली.
ओके, वैसे ही हमने टेबल बना दी है, मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ, आपको चाहिए तो वीडियो देखना है। तो देयर इज मोनो एटॉमिक गैस, देयर इज डाई एटॉमिक गैस, एंड देयर इज विच गैस बेटा? पॉलीएटॉमिक गैस। Polyatomic gas. चलो बेटा शुरू होते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं मोनो के? अरे भाई मोनो के कितने होते हैं डिग्रीज ऑफ? 3 थ्री translation. क्या? ट्रांसलेशनल बराबर क्या? रोटेशनल कितना होता है इसका? 2. 0 रोटेशनल बराबर। अच्छा डायटोमिक गैस में क्या होता है? डायटोमिक गैस में बोलेंगे कोई? हेलो? 3 ट्रांसलेशनल, 2 rotational. 2 रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल कितने होते हैं अगर वाइब्रेशन करना रहेगा तो? 1 वाइब्रेशन। बट हमने आपको बताया था जब भी वाइब्रेशन होगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, बराबर है ना? हेलो? बिकॉज ऑसिलेशन में पढ़ा है ना, जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ओके कम ऑन। पॉलीएटॉमिक गैस में देयर इज 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड F वाइब्रेशनल, बराबर क्या? हेलो? Yes, sir. अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इनको मिला के कितनी एनर्जी बनेगी? इन दोनों को मिला के कितनी 3. एनर्जी बनेगी? 3/2 kT, हाफ kT मिलती है ना एक। भाई 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना एनर्जी मिलेगी? हाफ kT। तो यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो कितना एनर्जी मिलेगी बेटा इस डब्बे को? कम ऑन, बराबर है ना? 3/2 kT मिला इसको। अच्छा इस डब्बे को कितना मिलेगा? ये दोनों वाइब्रेशन को छोड़ दो अभी, इसको कितना मिलेगा पूरा मिला के? 5/2 kT. इस डब्बे को कितना मिलेगा बेटा? हेलो? आई ऑल देयर विथ मी? दिस जो डब्बा इज देयर, दिस ब्लू डब्बा इज एट विच टेम्परेचर बेटा? विच टेम्परेचर? हेलो? विच टेम्परेचर? Low temperature. अच्छा अगर हाई टेम्परेचर बोलेगा ना तो ये पूरा डब्बा ले लेने का। दिस यू हैव टू इंक्लूड, बराबर है ना? इफ दे टेल यू एट विच टेम्परेचर बेटा, विच टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। तो कितने हो गए High डिग्रीज ऑफ temperature. फ्रीडम? कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए अभी? 6. इसका 3, इसका 2। 7/2 kT. हाँ तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, याद रखने का, बिकॉज इसके पास एक के को देता है एक पी को देता है। तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? 3 और 3 6। हेलो? 3 4 5 6 7 हो गए ना? 7 हो गए ना? हेलो? हेलो? आई यू Yes, देयर sir. विद मी? इधर कितने हो गए? इसका 6/2 kT और इसका F/2 kT इंटू 2 ना? हेलो? 6/2 kT तो पहले 2 का, और F/2 kT इंटू 2 तो F kT हो गया, बराबर है क्या? हेलो? Yes, sir. वीडियो देखो जाके यार। और ये लाल वाला इज एट विच टेम्परेचर बेटा? विच टेम्परेचर? यस सर टेल मी। इट इज एट High विच temperature. टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज हो गई पूरा हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डिस्कशन। एक बार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डिस्कशन किया, इसके बाद में और 2 फॉर्मूलाज है विच यू शुड नो, दैट इज CV इज du/dt, मतलब इस चीज का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, ये एनर्जी है ना, उसका एनर्जी पर मॉलिक्यूल है ना, इसका डेरिवेटिव। हेलो? गेटिंग इट? हेलो? या तो मैं आपको एक शॉर्टकट दे देता हूँ सीधा, इट इज F/2R। व्हाट इज F स्टैंड फॉर? व्हाट इज F स्टैंड फॉर? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मैं बोलूँ व्हाट इज CV फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, आप बताइए क्या होगा? कम ऑन, CV फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, जल्दी बोलो। 3/2R. 3/2R, F/2R होता है। व्हाट इज CV फॉर अ डायटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर? CV फॉर अ डायटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर। हेलो यार?
low temperature diatomic gas 5/2. 5/2R, and high temperature 7/2. सही है ना? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? What is CV for a polyatomic gas at low temperature? अरे भाई बोलो कितना होगा? 6/2R. बोलो, are you all there with me? getting है ना? वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, वीडियो बिना आपको कुछ आने वाला नहीं है. ओके अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला, Cp will become Cv plus R. अच्छा, Cv Cp मालूम है ना आपको क्या होता है? Cv को क्या बोलते हैं बेटा? Cv को क्या बोलते हैं? हेलो, जल्दी बोलो. Cv is called as what? Specific heat of gas at constant volume. आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं है. And what is this called as? Specific heat of gas at, come on, PdW. constant pressure. Hello, are you all there? पूरा एक हफ्ता करते क्या है तुम लोग? हेलो, यस सर. Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट है. तो कोई बता सकता है इसका सीवी कितना रहेगा? सीपी कितना रहेगा? सीपी मोनो का कितना रहेगा? मोनो का इसमें आर जोड़ दो, आर और जोड़ो, कितना रहेगा? 5/2R. डायटोमिक गैस लो टेम्परेचर, दूसरा वाला हो जाएगा 9/2R. यस और नो? Sir. पॉलीएटमिक गैस एट लो टेम्परेचर हो जाएगा 6/2R प्लस आर, दैट इज 4R. बिकॉज 6/2R इज 3R ना, प्लस आर करेंगे तो 4R हो जाएगा. यस और नो? हेलो, Yes, इसको sir. इसको कॉपी करो, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट. ओके, next time I'll start with the take-ups only so that you all can understand what is happening. चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट फॉर्मूला, Cp minus Cv is R. इसको कहते हैं मेयर्स रिलेशन. where this is molar specific heat of gas at constant pressure. Body याद रखना, molar. What will this be? Come on, fast, come on. Molar specific heat of gas at, जल्दी जल्दी, constant volume. And R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. हेलो, गेटिंग इट? अच्छा, इसका यूनिट किस में रहेगा? ये तीनों का यूनिट ध्यान रखना, ये तीनों का यूनिट जो रहेगा इसका भी यूनिट होगा. इसका यूनिट रहेगा जूल पर मोल या किलो मोल केल्विन. इसका भी यूनिट वही रहेगा और इसका भी यूनिट यही रहेगा. यूनिट ध्यान रखना, यूनिट ये रहेगा तो ही ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते. ठीक है, तो तीनों का यूनिट क्या होना चाहिए? जूल पर मोल. देखो नीचे मोल है ना, इसलिए इसको मोलार बोलता है. गेटिंग इट? हेलो, अच्छा, सपोज देयर इज वन मोर फॉर्मूला, Cp minus Cv is R by mu. या इसको है ना डैश कर देते हैं, इसको Cp डैश कर देता हूं मैं, इसको Cv डैश कर देता हूं. व्हाट इज Cp डैश एंड Cv डैश? मोलार स्पेसिफिक. और इसको लिखेंगे Cp minus Cv is R by mu. Now what is this Cp and Cv? This is ध्यान रखना, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस
कि सब केमिस्ट्री में एक्चुअली पढ़ाया जाता है, मतलब इट इज हैज इट बीन डन इन केमिस्ट्री? हेलो हेलो, हाँ ना बोलो बेटा, केमिस्ट्री में हुआ है या नहीं हुआ है, कि याद ही नहीं है, लेक्चर ही नहीं बैठे हो? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. हैव यू ऑल डन थर्मोडायनेमिक्स? हेलो, यस सर. तो क्या ये आना चाहिए ना मेजर रिलेशन, उधर किया रहेगा आप लोगों ने. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये भी दोनों. अच्छा ये क्या है, इसको बोलते हैं मोलार मास. इन दोनों का यूनिट किस में रहेगा, ध्यान रखना, इट इज जूल पर किलोग्राम केल्विन. ठीक है, तो अगर नीचे वाला केजी है तो उसका प्रिंसिपल नाम हो जाता है. नीचे वाला अगर मोल रहेगा, मोल, ये नाम हो जाएगा मोलार. और इधर आर आएगा, आर बाय म्यू नहीं आएगा. हेलो, आर यू गेटिंग इट? यस और नो? Yes, sir. ये याद रखना, दो फॉर्मूलाज है आपके पास, Cp dash minus Cv dash is R, where this all is molar, and Cp minus Cv is R by mu, where this is in what sir? Principal. मतलब अगर वर्ड इसमें, इसका यूनिट किस में आएगा, जूल पर मोल केल्विन या किलो मोल केल्विन, एंड इसका यूनिट रहेगा जूल पर केजी केल्विन. समझ में आ रहा है क्या? तो केजी अगर रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, मोल अगर रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. ध्यान रखना, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा. इसका वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई विल स्टार्ट विद द सम्स सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. इसका टेकअप जरूरी है. नेक्स्ट आफ्टर वेकेशन आई विल स्टार्ट विद द टेकअप्स ओनली. तो हर एक हफ्ते आपको याद करके ही आना पड़ेगा. ठीक है, चलो ना, वी आर स्टार्टिंग विथ, मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपको दिया है, उसी के बेसिस पर वी आर स्टार्टिंग विद द सम्स. चलो हाँ, शुरू करते हैं. गिवन दैट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 3400, ध्यान देना, कैलोरी पर केजी केल्विन, ऊपर जूल नहीं है, कैलोरी है, उसका इलाज करता है. सीवी कितना दिया बेटा, 2400 कैलोरी पर केजी के, फॉर हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस का म्यू क्या होता है, 2 ग्राम होता है, बराबर है ना? हेलो हेलो, और आर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 8300. अभी यहाँ पे यूनिट देखो, ये जूल में है, दिस इज केजी केल्विन. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ जे विच इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. मेरी बात सुनो, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सबसे पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. ये प्रिंसिपल है कि मोलार है? प्रिंसिपल है कि मोलार है? सब लोग आंसर दो. अभी सिखाया बेटा, मोलार है कि प्रिंसिपल है? हेलो, अरे नीचे क्या है भाई? दिस इज, हाउ डिड यू कम टू नो इज प्रिंसिपल? kg. This is kg. So which formula will I use? Come on, help me out. जल्दी बोलो. Cp minus Cv is R by mu. सही है? हेलो, अरे सही सही है, सोनो बेटा, करेक्ट है. पर यहाँ पर एक फर्क है, ये दोनों किसमें है? ये दोनों का यूनिट है कैलोरी पर केजी के. आर का यूनिट क्या है, जूल पर केजी के. तो ये जूल और कैलोरी का मिसमैच है. अरे भाई, नीचे का सेम है डिनोमिनेटर, ऊपर का जूल का कैलोरी का मिसमैच है. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या मिसमैच हो रहा है? अरे भाई टेल मी, कम ऑन मैन, I should ask you now. Okay. Yes, Moksha, what is the mismatch, beta? Come on, reply fast. I think I should cancel the session only. You write the chapter five times, everyone. Okay? कुछ आता नहीं है आप लोग को. Krish Lodha,
What is the mismatch over here? Yeah, tell me. ठीक है. I think I should call your parents only and tell them कि भाई आप लोग पढ़ाई करते नहीं हो and we need to write the chapter 5 times and come next time. ठीक है. I'm ending the session right now. Heath Ruparel, are you there? Yes, sir. Moksha, are you there? Siddhant Rajpurohit, Yes, sir. Yes, sir. Madhura, Madhura, Deepsha, Yes, sir. Mitul, Yes, sir. Daksh, Yes, sir. Soham, Yes, sir. Mitansh, Ronit, ये क्या कर रहे हैं लोग? Ronit, Mitansh, not there. ठीक है. एक काम करो, ये वाला है ना लेक्चर फिर से देख कर आना तुम लोग. ये वाला जो लेक्चर है लास्ट वाला, ये देख कर आना. आई एम एंडिंग द सेशन राइट नाउ. आई एम नॉट हैप्पी. आई गिव यू वन मोर चांस. तो ना नेक्स्ट टाइम मैं पूरा 5 बार लिखा दूंगा चैप्टर को. ठीक है, चलो. आई एम एंडिंग द सेशन. नेक्स्ट टाइम ये पूरा लेक्चर ये पूरा कंप्लीट करके मुझे चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा. आप लोग बहुत बुरे प्रॉब्लम में आ जाएंगे. चलो, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड बाय.